Sitting on the dais, I must take the first name, my own teacher, Professor D.R. Singh. Ultimately, we became colleagues when we were in the hostel for more than 16, 17 years as a wardens of TGR. Then Madam Kamar Rahman, whom I have collaborated from ITRC when she was, and still we are collaborating with each other, especially in the research. That's why I called her specifically. The Dr. C.M. Singh, who has been with me in SAFI when I was a director there. Now I am happy that he has become director of RML Institute, Lucknow. Our own Dr. Abbas, who has been a very dynamic vice chancellor, I must say. I have seen many vice chancellors in India. And this program was the brainchild of Dr. Abbas, I must say. We sat together for many days and discussed, and then ultimately said, why not? We should, since your publications are there, why not get it released? So I compiled it and it will be released today. Dr. Faridi, our own again. And if I say a word about Dr. Faridi, he's a very dynamic principal. I have seen him when he was, even before joining ERA. Now my association with ERA must be more than 20 years by now. Because even before joining, I used to come to ERA for lectures and so many things. And then I used to see this gentleman. अभी मैंने कई बार जमाल साहब को भी कहा कि भाई भीड़ कम होती है तो मुझे फरीदी साहब याद आ जाते हैं. आज भी मुझे याद है वो गेट के सबसे पीछे जहाँ से लोग निकलते थे वहाँ ये खड़े मुझे मिलते थे. I was not knowing at that time him, so he is such a dynamic and such a personality. Many people sitting in the dais, Dr. K.B. Gupta, our own, Riaz Mehdi, if I start taking name, Anand Burma is one of us. Then Dr. Subrat, who was again with me in SAFI, I am very happy when I was director SAFI. Many people now are assuming a very important position in the country. Mr. Basu साहब, अगर मैं सबका नाम लूँ तो समय गुजर जाएगा, इसलिए मैं कुछ लोगों का नाम ओमिट कर रहा हूँ. And my dear students and my co-faculty colleague, ladies and friends, मैं अगर मुझे अलाउ करें तो थोड़े अपने सेंटिमेंट्स में हिंदी में बोलूं. क्यों बात साहब? ये जो रिसर्च पब्लिकेशन का कॉम्पेंडियम है, ये मेरे पास आइडिया कहाँ से आया? When I was director Patel Chest from 2012 to 15, then there I made a compendium of publication of Patel Chess, which is one of the very highest institute in the chess. So we could make there also 5-6 volumes of compendium, what has been published from the Patel Chess. You know, Patel Chess was very popular. You must have heard some name like Dr. Pentel, Dr. Viswanathan. They have been the doyen in their respective fields. So that's why from that idea, when one day I was discussing with Professor Abbas साहब कि अब मेरे भी पब्लिकेशन कुछ हो गए हैं, तो why not make a compendium? That is how मेरे पास compendium बनाने का कहाँ से मेरी जेनेसिस है, कहाँ से सोर्स है, मैंने आपको बताया. अभी सोनिया ने बताया कि we have published. She also told about the H index and citation. You know, if I narrate my publication history, I would like to tell something, especially the youngster who are sitting. You know, I am a medical teacher, still medical teacher, and
I must welcome Sri Syamanandan Singh, who has been, he has many things to tell, but my best way what I tell is, he has been my among the first few patients when I was in KGMC. I think from 84, 85 onwards. Since then we are meeting very regularly. अभी मेरी book release हुई थी. He must be around 85, I believe, but he doesn't look like that. तो ये उसमें भी आए थे और वेलकम सर. तो मैं कह रहा था अपना जो सफ़र है वो, मैंने कहा ना मैं मेडिकल कॉलेज का टीचर हूँ और मेरे मेंटर्स ने ये बताया था या मैंने जो समझा था कि मेडिकल कॉलेज के 3 जॉब होते हैं. फर्स्ट इज एजुकेशन, पीपल आर फॉरगेटिंग. सेकेंड इज पेशेंट केयर, और वो भी जो पेशेंट केयर जो होता था वो एजुकेशन के लिए ही पेशेंट केयर, अब थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है, लेकिन दैट वाज बेसिकली मेंट फॉर एजुकेशन. हमारे पास मरीज नहीं होंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को. बट द थर्ड कंपोनेंट, आई मस्ट से, अ बाई प्रोडक्ट वाज अ रिसर्च. सो आई से माई सेल्फ, आई एम नॉट ए हार्ड कोर रिसर्चर, but we work in a clinic, we have worked in clinical medicine, so there are enough opportunity to publish. That is why with last I think in 45 years we have published more than 400 publications. लोग अवेयर कहते हैं कैसे आपने कर लिया, तो हमने कहा भाई मेहनत करोगे तो सब कर लोगे. So if I remember my first, I wanted to give some tips. My first publication was with my mentor. Let me take his name, was Professor B.K. Khanna. He's a very tough guy. हमारे D.R. सिंह साहब और अब्बास साहब और ये लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं. He was my mentor. My first publication, it was in a national journal, was with him. And what was the history? How that was published? The case I got in the MD, it was a tuberculosis with Marfan syndrome, a rare condition. So हमारे जो एग्जामिनर वो भी उस वक्त बॉम्बे से आते थे, बहुत ही हाई फाई लोग होते थे. तो मुझसे उन्होंने जो वाइवा ले लिया एमडी का, उस जानों में एमडी किसी को मिलती नहीं थी. 5 लोगों में से कभी कभी नहीं मिलती थी किसी को. सो टफ. तो मेरे एग्जामिनर ने हमको या तो कुछ ब्लफ करने के लिए कि भाई तुमने ये पब्लिश नहीं किया. तो मैंने कहा मुझे क्या पता सर ये केस क्या है, मतलब ये वाज ट्राइंग टू नो फ्रॉम मी ये केस, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ सीनियर रेजिडेंट था जब एमडी में अपेयर हुआ. डीटीसीडी के बाद जब एमडी करते हैं तो आप सीनियर रेजिडेंट हो जाते हो. तो हमने कहा सर ये मैं नहीं जानता ये केस, तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ. तो हमारे खन्ना साहब को उन्होंने कहा, एंड एनएल बोर्डी, आई मस्ट टेक हिज नेम, Anil Bordia is no more now. Many of my mentors are not present. But खन्ना साहब से उन्होंने कहा, खन्ना, क्योंकि खन्ना साहब के एग्जामिनर बोर्डिया साहब रह चुके थे. आप सोचिए उन्होंने मेरा भी इम्तिहान लिया. तो उन्होंने कहा क्यों नहीं पब्लिश कराया तुमने. हमने कहा सर आप कर देंगे. तो दैट वाज माय फर्स्ट नेशनल. इट वाज पब्लिश इन 80 में. मैं बिटवीन रेजिडेंट और फैकल्टी के बीच में SR था लिटरली. तो मेरी पहली पब्लिकेशन वही हुई. दूसरा जो पब्लिकेशन मेरा आया वो इंटरनेशनल में आया. मैं उसकी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ कि पब्लिकेशन जब रिजेक्ट होके आता है तो कभी हम लोग भी बहुत रिजेक्टेड फील करते हैं, वो भी यंगर एज में. तो मैंने हिम्मत करी. अगेन इट वाज 80s, बहुत कितने हो गए, 45 साल हो गए. तो दैट आई सा ए केस ऑफ अ ethambutol induced thrombocytopenia. We believe that it is something very rare. हम लोग केसेस देखते थे. तो हमारे एक टीचर पीके मुखर्जी साहब थे, माय नेक्स्ट मेंटर. उन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद ये तुम केस क्यों नहीं रिपोर्ट करते हो. तो मैंने उस केस को रिपोर्ट करके, पहले एक चेस जर्नल आता है, अभी हमारी पीजी अगर बैठी हुई है, इंटरनेशनल जर्नल है, उसमें मैंने भेज दिया गलती से. भाई हर एक का जब यंग होता तो होता भाई बढ़िया वाले बेस्ट जर्नल में, उस वक्त का बेस्ट जर्नल था इंटरनेशनल, वहाँ भेज दिया. तो
वहां से 2 दिन बाद रिजेक्ट होके आ गया। बट दे रोट टू मी, देखिए अच्छा जब आप काम करते हो, दे रोट टू मी कि भाई ये मेरे जर्नल के व्यूअरशिप में ये नहीं आता है, क्योंकि चेस्ट इज ए बेसिकली चेस्ट। तो उन्होंने कहा ये ट्यूबरकुलोसिस का एरिया है और मेरे व्यूअर जो हैं इस तरह के पेपर्स को नहीं व्यू करेंगे। इस वक्त हमारे ख्याल से चेस्ट की जो वो है इम्पैक्ट फैक्टर है 20-25 होगा। तो बट दे एडवाइज मी, ये मैं यंगस्टर के लिए कहना चाहता हूँ, दे एडवाइज मी दिस इज अ वेरी गुड पेपर and this is possibly the second case report of the world, ethambutol induced thrombocytopenia, हमारी बहुत ATT thrombocytopenia। and what I advise you as a young faculty or researcher, what I advise you, send it to the appropriate journal। and they also wrote that name of उस वक्त एक वो थी कि उसको हम लोग कहते थे ट्यूबरकिल उस समय। नाउ द नेम हैज बीन चेंज, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टीबी एंड लंग डिजीज हैज बिकम। सो माय फर्स्ट पब्लिक एंड दे एडवाइज मी द जर्नल, एंड व्हेन आई सेंड दैट पेपर टू दैट जर्नल, तो भाई हम लोग इंडियन हैं, अंग्रेजी हमारी बहुत अच्छी तो नहीं होती, तो उस जर्नल का ये आया मेरे पास लिखा हुआ कि योर पेपर इज, उन्होंने भी यही लिखा, योर पेपर इज द सेकेंड केस ऑफ द वर्ल्ड and we gladly accept to publish। अब उन्होंने एक लाइन और लिखी, allow me to correct spellings or if any mistake। हमारे पास नहीं भेजा उन्होंने। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ, and that was published again in 80s, that was the first my international publication। so in that way we have worked together। और यही 2 मेंटर मेरे शुरू के थे, इन्होंने मुझे इंड्यूस किया। उसके बाद तो मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा KGMC के, तो मैं किसका नाम लूं, उसमें DR सिंह साहब भी एक बैठे हुए हैं। मैं पहले KGMC से शुरू करता हूं। और KGMC में मेरे बहुत से लोग थे, मैंने खन्ना साहब, मुखर्जी साहब, अग्नोत्री, दे आर माई मेंटर। नाउ दे आर नो मोर, बट आई स्टिल रिमेंबर व्हाट वाज देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग। पब्लिकेशन के लिए उन्होंने मुझे बहुत इंड्यूस किया। फिर यहाँ KGMC के बहुत से रेजिडेंट्स का मैं नाम, क्योंकि देखिए फैकल्टी के संग अगर PG नहीं अच्छा है तो नहीं काम चल सकता है। लिखता तो शुरू में आइडिया हम लोग देते हैं, लिखता तो वही है शुरू में, फिर हम करेक्ट करते हैं। तो आई कैन नेम हंड्रेड्स ऑफ PG नाउ हु आर अज्यूमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन ग्लोबली, and they wrote with us, that is how our publication are there। उसके बाद मैं KG से अगर मैं निकलूं, मैं सैफई में गया तो CM सिंह साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो वहाँ भी मैं एक आइडिया ढूंढता रहता था, यार यहाँ रिसर्च जरा वहाँ थोड़ा सा कम था, तो मैंने लोगों को इंड्यूस किया। CM सिंह साहब को याद होगा, और एक हमें नाम अभी भी याद है, वो फॉरेंसिक मेडिसिन के हेड थे, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव। ही रोट विद मी द फर्स्ट पेपर इन सैफई, एंड दैट वाज अ लिटिल डिफरेंट देन, बिकॉज ही वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, बट वी इंड्यूस्ड मेनी पीपल इन सैफई। आई कैन नेम 50 ऑफ देम, इसमें से एक CM सिंह साहब भी हैं। फिर मैं गया पटेल चेस्ट। वहां से पटेल चेस्ट अगेन वाज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। वहाँ के PGs तो इतने अच्छे, वहाँ DM था, DM हमें इंट्रोड्यूस किया वहाँ पर लिटरली, DM इन पल्मोनरी मेडिसिन। तो वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते थे, एंड आई रोट मेनी पेपर। वहाँ के अभी आज के जो प्रेजेंट डायरेक्टर अगर ज्वाइन किया होगा तो सुन रहे होंगे, डॉक्टर राजकुमार, उनके संग हम लोगों ने, और बहुत से रेजिडेंट ऐसे थे। 1 or 2 नेम आई वुड लाइक टू टेक। अभिजीत है अभी भी, he is a DM now most of them has become DM, and he wrote with us like anything। so many of the publication with our and Abhijit is and many of the students, when we recognize, they are still writing with me। अब उसके बाद मैं जब पटेल चेस्ट से निकला तो मैं एरा में आ गया। अभी आपने सुना लगभग 10 साल एरा में मुझे एक्टिव रूप में हूँ। एरा में मैं अगर नाम लूँ, बहुत लोग हैं।
यहाँ भी मैं आता हूँ तो यही देखता हूँ किस में ये कैपेबिलिटी है। देखिए टीचर का, मेंटर का काम क्या होता है? फाइंड आउट द गुड क्वालिटी ऑफ ए पर्सन एंड यूज देम। यही तो टीचर, यही मेंटर का काम है। तो हमारे अभी बहुत लोग हैं जो यंगर फैकल्टीज में हैं। वैसे उसमें कुछ लोगों का अगर नाम लूँ तो एक रचित बैठे हुए हैं यहीं पे, फिर ऋषभ, कुछ भी आइडिया दे दीजिए तो वो लिखने को तैयार हो जाता है। आई हैव मेनी नंबर्स ऑफ पब्लिकेशन विद ऋषभ, रचित, और वो जो हमारी एसआर है, एसआर नहीं अब तो फैकल्टी हो गई, हर्षिता, कुछ भी उसको आइडिया दे। वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि कौन से टैलेंट्स हैं। सो वी हैव मेनी पेपर विद देम। सो ये मेरी एरा की कहानी है कि एरा में भी हम लोगों को बहुत इंड्यूस किया। और ये आज का पर्पज़, शायद मेरे को 15 मिनट दिया गया था, आज का पर्पज़ भी यही है कि ये जो यंगर जनरेशन है, अभी हमारे ज़माने में आप पूछेंगे मुझसे, एक एरा का मैं एक नाम और लेना चाहूँगा, अब्बास साहब, मेरे साथ उसने DTCD किया था, काफ़ी पहले किया था वो, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले। अमिताभ बंका, नाउ ही हैज़ बिकम full-fledged MD, and he wrote with me maybe around 15 papers when during his DTCD period. But the same thing, mentor has to recognize the quality of person. He has a very good writing capacity, and still Amitabh Banka is writing with me. He is in Patna, he is a big guy now, big person, but he is still writing with me. अभी मेरे बुक चैप्टर उसने अभी भी मुझे लिख के ख़त्म करके दिया। सो देखिए, हम टीचरों का काम यही होता है मेंटरशिप के लिए, पहचाने कौन है। और स्टूडेंट्स को ये मैं कहता हूँ, आपको भी ध्यान देना है, थोड़ा मेहनत करेंगे। आई नो द जनरेशन्स आर चेंजिंग। अब मैं यहाँ एक बात ये कह दूँ कि जितनी थीसिस मैंने KGMC में कराई, 80% ऑफ द थीसिस आर पब्लिश्ड इन अ गुड जर्नल। मैं ये भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें दोनों रोल था। टीचर भी बहुत लग करके काम करता था और स्टूडेंट भी बहुत लग के। तो 80% माई थीसिस हैज बीन पब्लिश, इसलिए तो इतने नंबर हुए। सैफई में चूंकि नया इंस्टीट्यूट था, वहाँ PG उस टाइम नहीं था, हमारे बाद हम लोगों ने इंड्यूस किया वहाँ पर। वहाँ भी 1-2 लोगों मेरे साथ लिखा। पटेल चेस्ट में तो बहुत लोगों ने, मेनी ऑफ द पब्लिकेशन इज अगेन फ्रॉम पटेल चेस्ट, बिकॉज दे वर गुड स्टूडेंट्स। उनको कुछ आइडिया दे दीजिए तो वो लिख के लाते थे। आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। पटेल चेस्ट में जितनी थीसिस मैंने कराई, चाहे MD चाहे DM, सारे पब्लिश्ड। तो आई स्टिल रिमेंबर देम कि भाई कैसे वो लोग थे। आइडिया ये है कि नटसेल इफ आई से पब्लिकेशन, और ये भी मैं बता दूं, आज की तरह जैसे MCI या उसको NMC कहते हैं, कंपलसरी है आपके प्रमोशन के लिए। अब्बास साहब को याद होगा, हम लोगों के टाइम पर, DR सिंह साहब को याद, हम लोगों के टाइम पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं था। तो लोग मुझसे पूछते हैं क्यों इतने लिखते रहते हो? हमने कहा अपनी खुशी के लिए, किसी की खुशी के लिए थोड़ा लिखते हैं हम। दिस इज आवर हैप्पीनेस। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि खुशी कहां से आती है? जो भी आपका काम है उसे आप कायदे से करेंगे तो इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई चीज नहीं देती है। दिस इज आई एम टेलिंग आफ्टर 50 years ऑफ माई एक्सपीरियंस। यू वर्क वॉट एवर यू आर असाइन टू वर्क, वट यू आर गिवन अ वर्क, कायदे से काम करिए। तो मैं इन सबों का, मैं एक बार ये जरूर, मैं अपने टीचर्स का, अपने स्टूडेंट्स का, मैं स्टूडेंट्स के, आप तो डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल हो गए हैं बहुत जगहों पर, उनका मैं इंटरनेशनली भी, दे आर वेरी सक्सेसफुल। वन ऑफ द स्टूडेंट फोन मी, Sunis, he also wrote with me. He is in Cleveland Hospital now, looking after he is in charge of pulmonary hypertension. So उन लड़कों को याद आता है कि जो अच्छे होते हैं कैसे अच्छे होकर निकले। मैं अल्टीमेटली एक चीज़, चूँकि बहुत लोग बैठे हुए हैं, अब मेरे ख्याल से यहाँ पर उम्र वाइज देखी जाए तो सबसे बड़े श्याम नंदन सिंह साहब, जो मैंने बताया मेरे पहले मरीज, लेकिन मुझे हमेशा वरदान देते हैं। एंड लेट मी टेल,
बुरा नहीं मानेंगे श्याम नंदन सिंह साहब, ये बताते रहते, ये अस्थमा के मरीज थे। और देखिए ही मस्ट बी 90, कितना सर बता दूं, हैं 90 प्लस, और अस्थमा के मरीज, बिकॉज ऑफ हिज लाइफ स्टाइल ही इज। आप कोई बता सकता है अस्थमा के मरीज हैं? तो हम दोनों का रिश्ता उतने सालों से चला आ रहा। आज मैंने सुबह इनको कल फोन किया कि सर अगर थोड़ा समय हो तो 5 मिनट मेरे फंक्शन में आप 4 चांद लगा दीजिए, एंड ही केम इमीडिएटली। सो मैं अल्टीमेटली, मैडम कमर रहमान का नाम तो मैंने लिया, बहुत चीज सीखी इनसे। एक चीज सीखी मैं आज डिस्क्लोज कर देता हूं, मुझे भी लोग कहते हैं वेल ड्रेस्ड चेस्ट फिजिशियन, मेरे को कई उपाधि इंडिया में मिली हुई है, एक है कि वेल ड्रेस्ड चेस्ट फिजिशियन, तो उसमें मैं एक नाम इनका लेता हूं कि अगर सोफिस्टिकेशन हमने सीखा, सी वॉज इन ITRC, वी आर रिसर्च, वी हैव मेनी पेपर्स टुगेदर, एंड आपका काम एस्बेस्टस में बहुत हाई स्टैंडर्ड्स का है, तो लेकिन हमने जो सोफिस्टिकेशन सीखा वो मैडम आपसे सीखा। ये कहती हैं आप मुझे हमेशा मैडम क्यों कहते हैं? हमने कहा भाई मेरे दिल में मैं आपको यही कहूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पीपल वर्क विद यू। तो DR सिंह साहब के मैं बता चुका हूँ, हम लोग साथ साथ रहे बहुत साल। पहले हमने इनसे पढ़ा एनाटमी, फिर हम लोग साथ में वार्डन रहे बहुत साल, 16 साल रहे थे शायद, एक ही मकान में रहे, बहुत से अच्छे बुरे दिन भी देखे। अब मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको, जो सब लोग बैठे हुए हैं, इसमें कम से कम 2 लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो मैंने एक इनकाउंटर विद माय टीचर्स को बनाया हुआ बन गया है, वो एडिट हो रहा है, उसमें मैंने ऐसे बहुत 2 तो यहीं बैठे हुए हैं, डॉक्टर DR सिंह, एंड वन ऑफ द टीचर आई मेंशन इन दैट इज प्रोफेसर मेहदी हसन, जो इस मेडिकल कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी के आई मस्ट से जनक हैं। और मैं कभी कभी अब्बास साहब से कहता हूँ कि मैं भी उनका अडॉप्टेड सन था, जो भी साइंस में उन्हें मुझे। देखिए बड़े लोगों की एक खासियत बात मैंने देखी, यंगर को सीखना चाहिए बात, वो किसी चीज का ध्यान नहीं देते थे, वो सिर्फ ध्यान देते थे व्हाट इज योर कैलिबर। नहीं, वो तो एनाटमी के थे, मैं टीवी चेस्ट का आदमी, तो कहाँ मेरी उनकी मुलाकात। लेकिन धीरे धीरे चूंकि मैं वार्डन रहा, डॉक्टर साहब के संग मुलाकात होती रही, उन्होंने अप्रिशिएट करने लगे, तो ही इज माई, आई मस्ट से, साइंटिफिक मेंटर थे मेरे। वो मेरी नेशनल अकेडमी की मेंबरशिप, फेलोशिप, एटलीस्ट ही हैज इंड्यूस्ड। मिलता तो आपको अपने बदले में, ही हैज सेड वो क्यों नहीं भरते हो तुम, तुम्हारी तो इतनी अच्छी CV है। सो आई मस्ट रिमेंबर हिम, जो इस संस्थान के मैं कहूँगा संस्थापक भी रहे हैं और अब्बास जी के पिताजी रहे हैं, तो मैं उनको भी एक बार सलाम करता हूँ, ट्रिब्यूट पे करता हूँ, वो मेरे लाइफ में बहुत अहम रखते हैं। बस मैं ख़त्म करना चाहता हूँ 2-3 वर्ड से। अगर आपको जीवन, जैसे मेरे से भी लोग कहते हैं सर आप अभी एक्टिव कैसे हैं, आपकी उम्र के तो बहुत लोग अभी बैठ गए, तो मैंने एक मैंने वो दिया कि एक टिप क्या दिया, वो पब्लिकेशन टिप नहीं, वो लाइफ के लिए टिप है कि अपना काम आप सही से करें, जो भी दिया गया है इंथुजियाज्म से करें। यही डेफिनेशन फ्यूचर की आएगी, अभी हेल्थ की डेफिनेशन बहुत जल्दी बदलेगी। और दूसरा मैं एक वाक्य यूज करता हूं जो मैं यहां कह के खत्म करूंगा कि आपके सोच में क्या सोचते हैं आप, और आपके कर्म में करते क्या हैं आप, और आपकी बोली में। लोग कहते हैं ना अक्सर, सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, माय फाइनल टिप्स हाउ यू कैन रिमेन हेल्दी, इन तीनों में एक सामंजस्य रखिए। आजकल बड़ा मुश्किल काम है कि आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो स्पीच है और आपके जो एक्शंस हैं, दे शुड विद ईच अदर, दे शुड।
and then you lead a very good life and very happy life. अब मैंने कहा यहाँ में जितने लोग बैठे हैं, मैं वहाँ से थोड़ा बिखर गया था। सबसे बड़े श्याम नंदन सिंह साहब बैठे हुए हैं, उसके बाद DR सिंह साहब बैठे हुए हैं, कमर रहमान साहब भी हमसे थोड़ी बड़ी ही हैं मुझे लगता है, और फरीदी साहब हम लोग लगभग साथ के हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए इतने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं मेरे साथ। इसीलिए मैं, देखिए सीनियर्स की ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनकी ब्लेसिंग नहीं है, आजकल का यंगर जनरेशन ये भूल रहा है, समझ गए? लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए। अगर लाइफ को अच्छा बिताना है, अच्छी बात करनी है, तो ये चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैं एक बार पुनः डॉक्टर अब्बास, हु इज़ बीन आवर वाइस चांसलर, और जितने लोग आए मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए। ये फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन नहीं था, वैसे हम लोग फंक्शन करने में बड़े मशहूर हैं इंडिया भर में। तो लोगों ने कहा सर फिर भी आप ये करने जा रहे हो, तो बहुत लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए होंगे। तो विद दीज फ्यू वर्ड्स आई थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर एंड ग्रेसिंग दिस ओकेजन। थैंक यू वेरी मच।